Triarchic theory of intelligence, again coming under the information processing approaches of intelligence, is given by Robert Sternberg in 1985. Now, Sternberg views intelligence as the ability to adapt, to shape, to select environment to accomplish one's goals and those of one's society as well as culture. Now, if you remember, जब हम process theories की बात करते हैं या information processes approach की बात करते हैं, तो वो how part, that is how are we able to use our intelligence effectively in order to deal with various situations in our life, वो इसकी ज़्यादा बात करती है as compared to जो psychometric theories हैं जो structure of intelligence की बात करती हैं कि intelligence बना कैसे है. लेकिन अगेन जो स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है वो ये कहती है कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है उससे हम अपनी एनवायरमेंटल कंडीशंस को अपनी सिचुएशंस के साथ अडेप्ट कर सकते हैं और ना कि सिर्फ अडेप्ट कर सकते हैं, हम उन्हें मॉडिफाई या उन्हें शेप भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ओन गोल्स, आवर ओन नीड्स. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस विच इज़ गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग. ये डेफिनेशन आपके 1 मार्कर में आ सकती है. Now, according to this particular theory, there are 3 basic types of intelligence: componential, experiential, as well as contextual. First, we need to understand that according to Sternberg triarchic theory of intelligence, it is the ability to achieve success in life. ठीक है, based on one's personal standards as well as one's socio-cultural context, कि मेरी अपनी abilities क्या है, capabilities क्या है, मेरा environment कैसा है, socio-cultural context कैसा है, उसके according intelligence को use करके मैं अपनी life में success कैसे पा सकती हूँ, right? Success is achieved through a balance of all these intelligences that we talked about: analytical, creative and practical abilities. एनालिटिकल ही कंपोनेंशियल को बोलते हैं. तो इन्हें हमें बैलेंस करना है इन ऑर्डर टू अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग. So it was an alternative to the idea of general intelligence. If you remember the psychometric theories of intelligence, जो 1 factor theory थी, 2 factor theory थी, उसमें G factor की बात आई थी कि एक general intelligence है, mostly academic intelligence है, जिसके बेस पे intelligence test formulate हुए थे उस टाइम पे. So this theory was very revolutionary because it came as an alternative to the idea of general intelligence. इसने बोला कि intelligence also consists of the ability to adapt to the world. It also consists of creativity skills, practical skills, etc. They are also equally important in measuring overall intelligence of an individuals. तो जैसे पहले के टाइम पे IQ मेजर होता था या इंटेलिजेंस मेजर होती थी, वो सिर्फ एकेडमिक इंटेलिजेंस के डायमेंशंस को देखते थे, बाकी डायमेंशंस को नहीं देखते थे, जबकि स्टर्नबर्ग ने बाकी डायमेंशंस की बात की थी. Now, first part, componential intelligence, is also known as analytical intelligence. By the very name analytical, we can understand कि हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चीज़ों को कैसे एनालाइज करते हैं, राइट? हमारे माइंड में क्या क्या मेंटल स्टेप्स चल रहे होते हैं, क्या एनालिसिस चल रहा होता है इंफॉर्मेशन का, जिसके बेस पे हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो हाउ टू थिंक एनालिटिकली एज वेल एज क्रिटिकली. This particular type of intelligence is important to succeed in your academic life in your schools. Now, analytical intelligence के 3 सब components हैं. First is knowledge acquisition, second is meta या फिर higher order component and third is performance component. तो ये एक sequential order में है. सबसे पहले एक example लेते हैं. For example, you have to prepare for your exam. ठीक है, आपका 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, आपको प्रिपेयर करना है. तो फर्स्ट कंपोनेंट हुआ नॉलेज एक्विजिशन, मतलब यू विल फाइंड और एक्वायर द वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे आपका सिलेबस क्या है, आपके पास कितना मटेरियल है, नोट्स कैसे हैं, कितना टाइम है आपके पास. तो एक्वायरिंग द वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, अभी हम नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं. सेकेंड स्टेप क्या हुआ, मेटा या फिर हायर ऑर्डर कंपोनेंट का मतलब अब हम यहाँ पर प्लानिंग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अब आप प्लान करेंगे कि क्या आपके गोल्स हैं, क्या टाइम मैनेजमेंट है, अलग अलग सब्जेक्ट्स को आप कितना टाइम एलोकेट कर रहे हैं. ठीक है, तो द प्लानिंग पार्ट ऑफ डूइंग थिंग्स कम्स अंडर द सेकेंड विच इज़ हायर ऑर्डर कंपोनेंट. इसमें आप अपनी थिंकिंग स्किल्स, राइट, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये सब चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं. थर्ड इज परफॉर्मेंस कंपोनेंट. आफ्टर एक्वायरिंग नॉलेज एंड यूजिंग योर कॉग्निटिव components, your higher order skills, now you are actually doing the things.
ऑलराइट, नाउ यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. तो ये कुछ स्टेप्स हो गए आपको ये समझने के लिए कि कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है. नाउ द सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस इज एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव इंटेलिजेंस. नाउ इसमें आप क्या करते हो, अपने ही पास्ट एक्सपीरियंसेस को, अपनी पास्ट नॉलेज को, अपनी पास्ट स्किल्स को यूज़ करते हो टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व नॉवल प्रॉब्लम्स. नॉवल का मतलब न्यू होता है. Alright, to deal with new situations in your life. So people who discover things, people who are very curious, they try to invent things, they are very innovative, right? All these skills are coming under experiential intelligence. For example, entrepreneurs आज के टाइम पे जिस तरीके से AI बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर रहा है, तो किस तरीके के नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं जो AI से रिलेटेड हो, जो आने वाले टाइम से रिलेटेड हो, राइट. साइंटिस्ट अगर कुछ न्यू डिस्कवरीज करते हैं, इन्वेंटर्स करते हैं, दे ऑल यूज एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. द थर्ड वन इज कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस. कॉन्टेक्चुअल मतलब रिलेटेड टू अ पर्सन्स कॉन्टेक्स्ट. दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. ओके, एबिलिटी टू डील विद एनवायरमेंटल डिमांड्स. हमारे सामने जो भी एनवायरमेंटल सिचुएशंस हैं, डिमांड्स हैं, उनके साथ हम कैसे डील करते हैं, इसको हम स्ट्रीट स्मार्टनेस भी बोलते हैं, बिजनेस सेंस भी बोलते हैं और कॉमन सेंस भी बोलते हैं, राइट. सो हाउ डू वी अडेप्ट टू आवर एनवायरनमेंट, नॉट जस्ट अडेप्ट बट ऑल्सो वी मॉडिफाई आवर एनवायरनमेंट टू फिट आवर नीड्स. जैसे मेरे गोल्स हैं, मेरे डिज़ायर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट को कैसे चेंज कर रही हूँ, कैसे मॉडिफाई कर रही हूँ. सो द एग्जाम्पल्स वुड बी, फॉर एग्जाम्पल है सेल्स पर्सन, कि सेल्स पर्सन अलग अलग कस्टमर्स से मिलता है. फॉर एग्जाम्पल एक ओल्ड एज पर्सन से मिलता है और एक एडोलेसेंट से मिलता है. तो एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ वो यूज़ करेगा सो दैट उसका प्रोडक्ट बिक जाए. सिमिलरली जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं या एडवर्टाइजर्स होते हैं, वो भी आपकी साइकोलॉजी समझते हैं, आपकी नीड्स को समझते हैं कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स किस तरीके से बेचे जाएं जो आप खरीदेंगे, राइट. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस यूज़ की जाती है जब आप डे टू डे लाइफ में लोगों से मिलते हो तो उनके साथ कैसे डील करते हो, चीज़ों के साथ कैसे अडाप्ट करते हो और साथ ही साथ अपने ही एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई करते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर्स. ऑलराइट, so this is about Sternberg's triarchic theory of intelligence coming under information processing model of intelligence. In next video, we'll do PASS model.